A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Taru, Assistant Professor, Department of Commerce, DAV PG College, BHU. This is my lecture for my MCom 4th semester students, and the topic that we are covering here today is the cash flow estimate and how to calculate the estimated cash flow. Okay. Tomorrow we are going to do with the projected balance sheet and break-even analysis. Today we are going to deal with, in my previous lecture, I have dealt with the cost of production estimate and the profitability estimate. Today I will be dealing with the unit 3, that is cost, that's a cash flow estimate and how to calculate that cash flow estimate. Okay, cash plays a very important role in sustaining the economic business of life. Okay? And cash is required in order to pay the dividend, the taxes, the loans. Okay? So day to day, in order to purchase the fixed assets that is required to take the projects that is required in the business, that is required to repay the suppliers who has been supplying the raw material for converting that product from input to output. तो जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में खून की आवश्यकता है, as the blood is needed for the human body for proper circulation, in that same way the cash is also needed for the successful conduction or the smooth functioning of the business. उसी तरह व्यवसाय या परियोजना को चलाने के लिए कैश की भी हमको ऐसी ही जरूरत होती है, क्योंकि कैश जरूर आपका व्यवसाय प्रॉफिटेबिलिटी कर रहा है, उसको लाभ हो रहा है, लेकिन कभी कभी उसको प्रॉपर बैलेंस ऑफ कैश अपने बिजनेस में मेंटेन करके रखना चाहिए. ठीक है, दो ही इज अर्निंग प्रॉफिटेबिलिटी, his business is earning profitability, but until and unless he has not kept the cash for the proper functioning of the business, he is not done with. मान लीजिए आपका बिजनेस तो प्रॉफिट कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट हो तो गया, बट नाउ द कैश अभी फ्यूचर में आपको रिसीव होगा. ठीक है, या फिर अगर आ भी गया पैसा आपके पास, तो यू हैव अप्लाइड और यूज दैट कैश टू ड्रेन आउट सम अदर पर्पसेस. ठीक है, तो until and unless you are having the cash, how you are going to maintain the liquidity of the business? आप अपने बिजनेस की लिक्विडिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे. तो स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम कैश को जरूर अपने बिजनेस में रखें. तो that's why we say that cash is playing a very vital role in the economic life of a business. यदि आपको व्यवसाय चलाना है तो ये बहुत ही आवश्यक है कि कैश का एक प्रॉपर बैलेंस आपके व्यवसाय में होना बहुत ही आवश्यक है. ठीक है, नाउ वी आर स्टडीइंग हियर दैट व्हाट इज कैश फ्लो. अभी तो हम बात कर रहे थे कैश क्या है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज कैश फ्लो. कैश फ्लो मतलब क्या होता है? द मनी दैट इज कमिंग इन एंड दैट इज गोइंग आउट for a specified period of time. ठीक है, जो इनफ्लो मतलब जहां से आपके व्यवसाय में पैसा आ रहा है, और आउटफ्लो मतलब आपके व्यवसाय से किसी पर्पस के लिए पैसा जा रहा है. तो इसी इनफ्लो और आउटफ्लो को, अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए ये जो फ्लो ऑफ कैश होता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इसी को हम कहते हैं कैश फ्लो. नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश फ्लो एस्टिमेशन. कैश फ्लो 3 चीजों के लिए बेसिकली हमको जरूरत होता है. नंबर 1, that is for the operating activities, that means for the day-to-day operation of the business, that means to repay the loan, to pay interest, dividend. ठीक है, और दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. ठीक है, कैश that is required for the investment purpose, that is for the purchasing the long-term assets and to invest in a big investment is known as the cash that is invested in investing activity. और तीसरा जो जरूरत होता है, that's a financing activity. फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी जरूरत होता है, that deals with the owner's share capital and composition. That means cash proceeds from the share, then cash proceeds from the debenture, notes, bonds, then cash repayment by redemption of debentures. ठीक है, तो इस तरह the cash
1, that's for the operating activity. Number 2, that's for the investing activity. And number 3, that is for financing activity. Okay, cash flow statement, that's an ingoing and outgoing of cost, and it tells you what is exactly the financial health of your business. आपके बिजनेस की वित्तीय स्थिति क्या है ये आपको बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ प्रोजेक्ट करना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। व्हाट अबाउट इफ वी आर एस्टिमेटिंग द कैश फ्लो? मान लीजिए हमको एस्टिमेट, हमें अपना कोई नया व्यापार शुरू करना है, नया व्यवसाय शुरू करना है और हमको कैश फ्लो का एस्टिमेशन करना है कि भाई कितना पैसा मेरे पास है, कहाँ पे, कैसे हमको ये एक अच्छा टूल साबित हो सकेगा यदि हम पहले से प्रोजेक्ट करके एस्टिमेट करके चले तो जो भी कमियां होंगी हम उसको दूर कर लें। तो इसी के लिए बनाया जाता है कैश फ्लो एस्टिमेट। दैट मीन्स कि हम उसका एस्टिमेशन कर लें, क्योंकि अगर प्रॉपर इनगोइंग एंड आउटगोइंग है तब तो आपके व्यापार की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। बट अगर उसका एक्सेस यूज या अच्छा यूज हो रहा है, दैट्स वेरी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ ऑफ योर बिजनेस। बट अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर वो प्रॉपर जगह पे प्रॉपर प्रोडक्टिव पर्पसेस पे कैश यूटिलाइज नहीं हो रहा है, then that is acting as a spell of doom for your business। कहीं ना कहीं वो आपके व्यापार के लिए बहुत खतरनाक है, ठीक है, if it is having a negative impact of cash। तो इन्हीं सबको जानने के लिए हम कैश फ्लो एस्टिमेट बनाते हैं। और कैश फ्लो क्या होता है? दैट एक्ट्स एज अ टूल to manage everything, that actually tells you, that actually informs you that where the actually your business is headed, क्या एक्चुअल में आपके व्यापार की स्थिति है, और यदि नहीं अच्छी है तो कैसे आप उसको पूरा करेंगे, और यदि ज्यादा आपने कहीं खर्चा प्रोजेक्शन में दिखा दिया तो कैसे उस कॉस्ट को आप कट करेंगे, ठीक है। वेयर आप उस इन्वेस्टमेंट का कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, और कहीं अगर एक्सेस खर्चा है तो कैसे आप कॉस्ट को कट करेंगे, ये हमको पता चल जाता है यदि हमने अपने व्यापार का कैश फ्लो एस्टिमेट कर लिया। इफ वी हैव मेड अ कैश फ्लो एस्टिमेशन ऑफ माय प्रोजेक्ट, definitely I'll be knowing what is the actually where my business is headed, ठीक है, मेरे बिजनेस की, मेरे व्यापार की स्थिति क्या है, and where I have to invest, and if I am using the excess money of cash, where I have to cut that cost, ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा, and that acts as a very good tool to manage everything, to manage cost very well। तो उससे हमें पता चल जाता है what is exactly the position of my business। Now, what are the advantage of cash flow estimate? कैश फ्लो एस्टिमेट से हमें किस तरह का लाभ हो सकता है, ठीक है। What are the various advantages? Number 1, predict cash shortage and surplus। इस तरह के कैश फ्लो प्रोजेक्शन को या कैश फ्लो एस्टिमेट को बना के हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारी सरप्लस कितनी है और हमारा शॉर्टेज कितना है, कितना कैश हमारे पूरे व्यापार को चलाने के लिए कम पड़ रहा है, या जैसा हमने सोचा है, जैसा हमने प्रोजेक्ट किया है, वो क्या सरप्लस है, ज्यादा है उम्मीद से, कम है, या फिर बहुत ज्यादा कम है। ये स्थिति हमको बता देता है यदि हमने कैश फ्लो एस्टिमेट को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया। दैट मींस दैट प्रोजेक्ट द कैश लॉस एंड कैश शॉर्टेज एंड द सरप्लस। क्या स्थिति है, क्या शॉर्टेज ऑफ कैश हो रहा है या सरप्लस ऑफ कैश है। दूसरा एडवांटेज, कंपेयर बिजनेस एक्सपेंस एंड इनकम। ओके, हम इस तरह का कैश फ्लो एस्टिमेट से जब पूरा का पूरा इनगोइंग और आउटगोइंग के सारे खर्चे जोड़ते हैं, सारे एक्सपेंस जोड़ते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि एक तो कौन कौन सी हमारी इनकम कहां से आ रही है, व्हाट इज द इनकमिंग कैश दैट इज कमिंग इन द बिजनेस, और उसके साथ साथ कौन से हमारे एक्सपेंस हैं, कौन से ऐसे एक्सपेंस डे टू डे हैं जो हमको बियर करने हैं। तो इस प्रोजेक्टेड कैश फ्लो से हमें ये भी पता चल जाता है कि व्हाट इज एक्चुअली द बिजनेस एक्सपेंस एंड इनकम। The third point is what is the estimate effect of business change?
जब हम यहाँ पे एस्टिमेट करते हैं कि यदि मान लीजिए किसी तरह का कोई चेंज आ गया अपने बिजनेस में, ठीक है, तो आप उस चेंज को किस तरह से यू आर गोइंग टू हैंडल, ठीक है, और अगर हैंडल कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा आपके व्यापार पे, ये सारी चीज यदि हमने प्रोजेक्टेड, जब हम प्रोजेक्ट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कोई चीज, तो ये सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं और इस एस्टिमेशन से भी हम ये भी साथ में अपना सॉल्यूशन लेके चलते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इफ सम इस तरह का कोई इफेक्ट यदि हमारे बिजनेस में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रूफ टू लेंडर्स यू आर एबल टू रीपे ऑन टाइम। और इस तरह के कैश को जब आप एस्टिमेट करते हैं तो आप सारी चीजों के एस्टिमेट करते हैं, आप प्रॉफिटेबिलिटी एस्टिमेट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एस्टिमेट करते हैं, बैलेंस शीट को एस्टिमेट करते हैं, जिससे आपको अपनी फाइनेंशियल स्थिति पता लग जाती है और आपको मालूम होता है क्या जो लोन आपने बैंक से लिया है, whether you are able to repay that loan on time or not, and that totally proves what is exactly or actually the credit worthiness of that businessman। वो आपके credit worthiness को बताता है कि yes, actually you are having a sound financial position, you are enjoying the goodwill and you can repay your money in time because definitely your business is earning profit। Okay, the next is the determine if you need to make adjustment and cut cost। अगर यदि आपने इस तरह का कैश फ्लो एस्टिमेट बना रखा है तो ये आपको एक और चीज की तरह मूव करती है कि यदि आपको कोई दिक्कत लग रही है, कहीं आपने ज्यादा खर्चा कर दिया, कहीं कॉस्ट कम लगाई, तो आप उस तरह का एंड में जाके यू कैन मेक एडजस्टमेंट regarding any change in the cost or any change in the expense, ठीक है। तो आपको लगेगा यदि बहुत ज्यादा आपने कॉस्ट लगा रहे हैं किसी चीज पे तो आप चाहें तो उसको कम कर सकते हैं, यदि आपको लगा रहे हैं कि आप कम लगा रहे हैं तो आप उस पर ज्यादा लगा सकते हैं। इसी का मतलब होता है एडजस्टमेंट, कि as and when you need, that's according to your flexibility, that's according to need of your business, that how you want to make an adjustment in the business, as and when you need you can make a change in the expense। और जब आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा खर्चा आप कर रहे हैं, you need to cut the cost in order to balance the situation of the business। That is basically the advantage of the cash flow estimate। Now we will move to how to calculate the projected cash flow। यदि हमको कैलकुलेट करना हुआ कि हम प्रोजेक्टेड कैश फ्लो की मतलब एस्टिमेशन ऑफ कैश फ्लो कैसे करेंगे, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टू मूव, व्हाट इज द स्टेप्स वी हैव टू मूव इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। जो हम एस्टिमेशन वाला कैश फ्लो बना रहे हैं उसको हम किस तरह से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट, फाइंड योर बिजनेस कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। सबसे पहले आपके पास ऑथराइज कैपिटल के रूप में, कैश के रूप में, ओपनिंग बैलेंस के रूप में एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड क्या कैश है, और वो हम कैसे टेक करेंगे, विद द फॉर्मल बाय डिडक्टिंग द फॉर्मर बिजनेस एक्सपेंस विद द फॉर्मर बिजनेस इनकम। पहले का जितना बिजनेस एक्सपेंस होगा यदि हम उसमें से बिजनेस प्रीवियस ईयर के बिजनेस इनकम को माइनस कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा व्हाट इज माय ओपनिंग कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रीवियस ईयर एक्सपेंस माइनस द प्रीवियस ईयर इनकम। सो वी आर गोइंग टू गेट द कैश दैट इज एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। दूसरा, एस्टिमेट इनकम कैश फॉर द नेक्स्ट पीरियड, जहां पे हम एस्टिमेट करेंगे कि ये हमको पता चल गया कि कितना कैश है मेरे पास, अब हम एस्टिमेट करेंगे कि कहां से मेरे पास नेक्स्ट पीरियड में इनकम आएगी, ठीक है। कैश फ्लो का मतलब ही क्या था, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कैश। तो हाउ द इनकम इज कमिंग इनटू माय बिजनेस, कोई रेवेन्यू होगा, कोई सेल्स होगा, कोई लोन आपने लिया होगा, तो ये सारी इनकम जो आपके बिजनेस में आ रहे हैं दैट्स इनकमिंग कैश, और उसका हम एस्टिमेट करेंगे कि नेक्स्ट पीरियड में किस तरह से हमारे पास इनकम आ रही है। उसी का तीसरा पॉइंट, एस्टिमेट एक्सपेंस फॉर द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है। जैसे हमने इनकम एस्टिमेट किया कि व्हाट्स द इनकमिंग कैश दैट्स कमिंग इन द बिजनेस, how now we are going to estimate
what is the outgoing cash for the next period, जो पैसा हमारे व्यापार से बाहर जा रहा है एक्सपेंस के रूप में, like payment of interest, payment of dividend, payment of the borrowings, ठीक है, जो हम रेंट, टैक्सेस, ये सारी चीज जो बिजनेस के डे टू डे खर्चे को बेयर करनी है अपने व्यापार को चलाने के लिए, तो ये एक तरह का एक्सपेंस है, तो ये भी हम एस्टिमेट करके रखेंगे नेक्स्ट पीरियड के लिए. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस, when we are going to subtract estimated expense from the estimated income. जब हम एस्टिमेट एक्सपेंस से एस्टिमेटेड इनकम को माइनस कर देंगे तो हमारा एड कैश फ्लो टू द ओपनिंग बैलेंस, मतलब जितना हमारा एक्सपेंस है एस्टिमेटेड माइनस इनकम जितना होगा, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, नाउ वी आर गोइंग टू गेट द कैश फ्लो टू द ओपनिंग बैलेंस, जिससे हम अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं. So this was the projected cash flow, how we are going to calculate the projected cash flow. Number one, what is your business cash at the beginning of the period? Then you are going to estimate income for the next period. Then you are going to estimate the expense for the next period. Then you are going to subtract the estimated income minus estimated income. Now what you are getting, that's a cash flow to the opening balance. This was the calculated projected cash flow statement. With this, I conclude my presentation today, and tomorrow in our lecture we are going to deal with a projected balance sheet and the break-even analysis for the MCOM 4th semester students. Thank you so much.